नमस्कार, वीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। देश के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के डिप्टी डायरेक्टर राहुल कपूर ने लिया वडोदरा शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का जायजा। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के तहत शहीद जवानों के परिजनों के लिए फंड इकट्ठा करने का आयोजन। जिला कलेक्टर आरबी बारड ने करवाई शुरुआत। महिला भाजपा प्रमुख के साथ खुले घूमने वाले पशु की वजह से हुए हादसे के चलते पशुपालक को पाशा के तहत किया गया गिरफ्तार। मालधारी समाज की ओर से पशुपालक पर कोई कदम न उठाने की मांग। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर में खुले घूमने वाले पशु आम जनता के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। दरअसल खुले घूमने वाले पशुओं की वजह से कई हादसे होते हैं और उसी के चलते पालिका की ओर से इन पशुओं पर एक कानून भी निकाला गया था। हालांकि इन पशुओं का कोई फैसला किया जाए उससे पहले ही कुछ दिनों पहले भाजपा की एक महिला उप प्रमुख के साथ खुले घूमने वाले पशुओं की वजह से हादसा हुआ और महिला उप प्रमुख को काफ़ी चोट आई। ऐसे में अब इस पशु से जुड़ा हुआ जो भी पशुपालक है उसे पासा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसी बात के विरोध में आज मालधारी समाज के लोग इकट्ठा होकर शहर के मेयर केयू रोकड़िया के पास पहुंचे और मालधारी समाज के लोगों की ओर से इस पूरे मामले को प्रस्तावित कर ये मांग की गई कि इस पशुपालक पर कोई भी कार्रवाई न की जाए। हालांकि इस मामले में मेयर की क्या प्रतिक्रिया रही, आइए सुनते हैं। पशुपालकोए કોઈ એક પશુપાલકને પાસા લગાડવામાં આવી છે, આ વિષય લઈને રજૂઆત કરવામાં આવ્યા હતા। અમે એવું સ્પષ્ટ શબ્દોમાં પશુપાલકો સાથે પ્રથમવાર મિટિંગ થઈ ત્યારે જ કહ્યું હતું કે જ્યારે કોઈ પણ ગંભીર દુર્ઘટના બનશે ત્યારે અમે 100% પાસા લગાડવાની માંગ કરીશું। અને જ્યારે આજે એક મહિલાને 5 જેટલા ટાંકા આવ્યા છે અને જીવલેણ હુમલો જ્યારે એની પર થયો છે ત્યારે એને એટેમ્પ્ટ ટુ મર્ડર ગણીને પશુપાલક પર પાસા લાગવી જોઈએ, આવી રજૂઆત પોલીસ કમિશનરશ્રીએ સમક્ષ અમે કરી હતી। માનનીય ગૃહમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવીને પણ રજૂઆત કરતાં હર્ષભાઈ સંઘવીએ પણ સૂચના એમના પોલીસ વિભાગને આપી હતી। અને પશુપાલક પર જો પાસા લાગતો હોય એ અમારા માટે પણ ઇચ્છનીય નથી, પરંતુ જ્યારે કોઈ પણ એવી ગંભીર ઘટના બનતી હોય છે અને કોઈનો પરિવારનું કોઈ વ્યક્તિ ઉજળી જાય, આવી લેવલ સુધીની જો ઘટના બનતી હોય તો સ્વાભાવિક રૂપે તંત્ર પણ પોતાની કાર્યવાહી કરશે જ। અને ભવિષ્યમાં પણ અમે પશુપાલકોને આ મિટિંગ કરી ત્યારે પશુપાલકોને ફરીવાર પણ અનુરોધ કર્યો છે કે આપની ગાય વાડામાં જ રાખો, અથવા તો ગાયને નજીકમાં લઈ જવી હોય તો પશુપાલક તેની સાથે જાય અને યોગ્ય ઝુંડમાં ગાયને લઈ જઈ શકે। અમારી એમાં ના નથી, પરંતુ ગાય રખડતી ફરે અને ગાય લોકો પર હુમલા કરતી ફરે તો અમે 100% એ પશુપાલક પર એક્શન લઈશું જ। ભવિષ્યમાં પણ આવી ઘટના ન બને તે દિશાની અંદર પશુપાલકોને અમે ચેતવ્યા છે। મેયરશ્રી જોડે મુલાકાત થઈ, જે પણ છોકરાને પાસા થયા છે કાલ રાતે 2 કલાકમાં એનું પોટલું વાળી દીધું। તો શું એ છોકરો દારૂમાં પકડાયો હતો, દારૂનું કટિંગ કરતો હતો, કોઈને કિડનેપ કરીને લાવ્યો હતો? માત્ર ને માત્ર એ છોકરો અમૃત વેચતો હતો, દૂધ, જેના લોકોના ઘરે દૂધનો વેપાર કરી અને ઝેરની જગ્યાએ અમૃત પીવરાયું હતું। એ જ એનો વાંક, એને કહેવાય પાસા। એટલે અમારે આજે રજૂઆત એવી કરી કે જે 308 તમે લગાવો છો અમારી પર, જે પાસાનું શસ્ત્ર ઉગામો છો, આપણી મુલાકાત થઈ ગઈ છે, આપણી મિટિંગ થઈ ગઈ છે, અમે રજૂઆત કરી છે કે વડોદરા સિટીની બહાર કાલે તમે અમને જગ્યા આપો તો અમે ગૌ માતાની જોડે જવા સહિત તૈયાર છે। તો તમે આ ઉતાવળ કેમ કરો છો? વડોદરાની અંદર આ પગલું કેમ ભરો છો? અમે કોઈ ધંધો તો ખરાબ કરતા નથી, માત્ર ને માત્ર અમે ગૌ માતાને રાખી અને સેવા કરીએ છીએ। તો રજૂઆત એ કરવા હતા કે જે પાસા થયા છે એ પાસા રિકવરી થાય અને એ છોકરો પાછો આવે 2 દિવસમાં, એવું તમે અમને આ એક વાતાવરણ બનાવી આપો અને આ 308 જે કાયદો છે એ કાયદો પાછો જાય। અમે કોઈ ખરાબ, અમારા માલધારી સમાજનો છોકરો વડોદરામાં કોઈ ખરાબ ધંધો નથી કરતા, માત્ર ને માત્ર અમૃતનો ધંધો કરે છે, દૂધનો, બરાબર? એટલે મેયરશ્રીએ પણ આશ્વાસન આપ્યું છે કે થશે એટલું અમે કરીશું
અને ઉપર અમે વાત કરી અને અમે કાલે તમને જણાવીએ છીએ. અમે એ બાબતે ના નથી પાડતા. જો આ તો 100 વર્ષનો સળગતો પ્રશ્ન છે, 100 વર્ષથી ચાલતું આવે છે, બરાબર, તો તમે ડાયરેક્ટલી કઈ રીતના આને આપણે ડાયરેક્ટ જ સોર્ટ આઉટ કરો? આની માટે સમય જોઈશે, ટાઈમ જોઈશે. તમે સમય આપો, ટાઈમ આપો, ધીરે ધીરે હરેક પ્રશ્ન હલ થતા હોય છે. ડાયરેક્ટ તમે કહો કે આ ગાયબ કરી નાખો, કઈ રીતના થાય? 100 વર્ષથી આ પ્રશ્ન છે વડોદરાની અંદર, આજનો નથી. સિટી મોટું થયું છે, અમે સિટીમાં નહોતા આવ્યા. देश के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर राहुल कपूर आज वडोदरा शहर के मेहमान बने और उनकी ओर से अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज पर मौजूद सोलर पैनल समेत शहर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मौजूद सभी प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया. इस वक्त गुजरात के सभी शहरों के प्रोजेक्ट के रिव्यू किए जा रहे हैं. दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इन सभी शहरों के रिव्यू की प्रक्रिया को शुरू करवाया गया है. ऐसे में देश के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के डेप्यूटी डायरेक्टर राहुल कपूर आज वडोदरा शहर पहुंचे और उनकी ओर से शहर में मौजूद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया, जिसके तहत उन्होंने अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज पर मौजूद सोलर पैनल का भी जायजा लिया. इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 225 करोड़ मुहैया करवाए जाएंगे और साथ ही गुजरात की जनता को भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सहभागी बनने की अपील की. अभी तक मैं इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया हूँ. वहाँ पे आपकी जो फायर सर्विसेज है और वाटर मैनेजमेंट के जो आपके सिस्टम्स है, सीवेज मैनेजमेंट के जो सिस्टम्स वहाँ पे लगे हैं, जो इक्विपमेंट लगे हैं. फिर हम लोग सुरसागर लेक का निरीक्षण किए और अभी हम लोग यहाँ पर जो सोलर आपके पैनल्स लगे हैं इस ब्रिज के ऊपर, उसका निरीक्षण करके जा रहे हैं. आइडिया ये है सेकेंड हाफ में हम लोग सारे जो शहर गुजरात के आज एक मीटिंग के लिए आएंगे, उनके साथ बात करके उनके प्रोजेक्ट्स का हम लोग रिव्यू करेंगे. सर, ये सारी चीज़ें देखने में कौन सी सबसे ज़्यादा चीज़ आपको प्रभावित? देखिए, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि विजिबली इतना सामने नहीं दिखती है, पर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. जैसे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसको एज अ सिटीज़न आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, तो काफ़ी बारी लगता है कि मे बी कुछ काम हो नहीं रहा है, पर वो बैक एंड में जितनी इंपॉर्टेंस है इन सिस्टम्स की, वो बहुत ज़रूरी है. चाहे वो फ्लड मॉनिटरिंग में हो, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट में हो. और फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो जैसे सुरसागर लेक हो गया या फिर इस ब्रिज की बात कर लें, जितनी फुटफॉल हम लोग यहाँ पर रात को देखते हैं, वो सिटी के सिटीजन्स के लिए एक बहुत अच्छा एवेन्यू बन गया है कि हम लोग अपने एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के लिए किस तरीके से स्पेस क्रिएट कर रहे हैं. और इसी तरह हमें पूरे शहर में स्मार्ट सिटीज़ मिशन में दोनों तरीके के प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है. कुछ प्रोजेक्ट्स जो सिटीजन्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करें विजुअली, और कुछ प्रोजेक्ट्स जो बैक एंड में सिस्टम इम्प्रूव करें ताकि उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो बिजली की सप्लाई हो, ये सब चीज़ें इम्प्रूव कर सकें. અત્યારે જ્યારે આ લોકો અકોટા દાંડિયા બજાર બ્રિજ પરના જે સોલાર પેનલની મુલાકાત લીધી, અરાઉન્ડ 1 મેગાવોટનો આ પ્લાન્ટ છે સોલારનો, અને એનાથી જે વીજ યુનિટ જનરેટ થયા છે 14 લાખ જેટલા એન્યુઅલ વીજ યુનિટ જનરેટ થઈ રહ્યા છે. એ લોકોએ જે આ પ્રતિનિધિઓ આવ્યા છે એમણે પણ આ પ્રોજેક્ટને બિરદાવ્યો છે અને જે પેબેક પીરિયડ પણ અરાઉન્ડ 9 to 10 યર્સનો મળે છે એ પણ એપ્રિશિએટ કર્યો છે. વડોદરાનો આ સૌથી સારો પોપ્યુલર રોડ છે, લોકો માટે પણ એટ્રેક્શન છે. રાતે અહીંયા લાઇટિંગ પણ ડાયનેમિક કરેલું છે RGB. 7 दिसंबर 1949 से आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे यानी कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है. इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य सभी वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें ये आश्वासन दिलाने का है कि उनके परिवार के लिए देश के लोग उसी तरीके से खड़े हुए हैं जिस तरीके से वो सभी शहीद जवान देश के लोगों के लिए खड़े थे. ऐसे में आज इस दिन को मनाते हुए जिला कलेक्टर कचहरी पर आर्म्ड फोर्स के जवानों और जिला कलेक्टर RB बारड़ की उपस्थिति में आयोजन किया गया था. दरअसल शहीद जवानों के लिए फंड इकट्ठा करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसकी शुरुआत जिला कलेक्टर RB बारड़ के हाथों करवाई गई और इसके साथ ही शहर की जनता को भी ये अपील की गई है कि वो सभी भी इस फंड में अपना सहयोग दें. आप सभी को पहले तो मेरी तरफ से जय हिंद और सशस्त्र सेना ध्वज दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं. आप सभी को, आपके परिवारों को, सिविल सोसाइटी को और पूरे वडोदरा नगर और पूरे देश को. हम सारे पूर्व सैनिक, सर्विंग सैनिक,
हम सब अपनी तरफ से तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ये झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को 1949 से सेलिब्रेट किया जाता है। इसका बेसिक पर्पस आर्म फोर्सेस में जो लोग अपनी सेवाएं देते हैं, मेरिटोरियस सर्विसेज देते हैं और देश के ऊपर बिना पलक झपके हुए शहीद होने के लिए खड़े होते हैं, सीमाओं की सुरक्षा के लिए थल सेना, वायुसेना, जल सेना, नौसेना, हम सभी सैनिक अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं मातृभूमि की रक्षा के लिए। उन सब शहीदों को याद करते हुए, उनके परिवारों के कल्याण के लिए, उनके आश्रितों के कल्याण के लिए, अनाथ बच्चे और उनके माता पिता जो उनसे पीछे रह जाते हैं, ये सारी जिम्मेदारी सिविल समाज के ऊपर आती है कि वो सैनिकों के बीच में, इस पूरे फ्रेटर्निटी के बीच में एक भरोसा कायम करें कि हम लोग, आप जब हमारे देश की रक्षा के लिए गोली खाने के लिए तैयार हैं, शहीद होने के लिए तैयार हैं, तो हम सिविल समाज आपके पीछे खड़ा हुआ है एक बहुत ही सॉलिड दीवार की तरह, भरोसा लेके आपको हर तरीके से, आपके परिवार, आपके आश्रितों की हम पूरी तरीके से देखभाल करेंगे। ये एक बहुत बड़ा भरोसा होता है। इस तरीके से मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि सशस्त्र सेना ध्वज दिवस के इस कार्यक्रम की जो आज शुरुआत हुई है, आज से ही जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उस हिसाब से इसमें डोनेट करें। ये फंड डायरेक्टली जो सर्विंग सैनिक हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उनके आश्रित, शहीदों की विधवाएं, उनके अनाथ बच्चे, उनके परिवार, माता पिता, उन सब की देखभाल, उनके वेलफेयर की वेरियस स्कीम्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें जो भी आप डोनेशन देंगे वो एक बहुत पवित्र कार्य है देश की। बेशक आप देश की सीमाओं पर लड़ने नहीं जा सकते, लेकिन अपने जवानों को इस तरीके का हौसला और भरोसा देके आप पूरे तरीके से ये साबित कर सकते हैं कि ये सभ्य समाज, सिविल समाज आपके पीछे खड़ा हुआ है और आप चिंता मत करो जवानों, डटे रहो। इस तरीके की भावना से सभी लोग डोनेट करें। और मैं मीडिया कर्मियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे बहुत विनती करना चाहता हूं कि इस वर्ड को सर्कुलेट करें पूरे सिविल समाज में, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन इकट्ठा हो, फंड्स इकट्ठे हों और हम लोग पूरी तरीके से, पूरे आत्मबल से अपनी देश की सीमाओं की रक्षा कर सकें। मैं सुरजीत सिंह राघव, जिला सैनिक कल्याण कचहरी का अधिकारी, ये मेरे ऑफिस सुपरिटेंडेंट श्री रामदेव सिंह झाला और हमारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजर, ये एनसीसी कैडेट्स जो भविष्य में देश की रक्षाओं के लिए एकदम तैयार हो रहे हैं। ये वीडियो एसएसजी अस्पताल से सामने आया है। दरअसल एसएसजी अस्पताल के ऑडिटोरियम बिल्डिंग पर मानसिक तौर पर एक अस्वस्थ युवा चढ़ गया था। हालांकि जब सिक्योरिटी गार्ड की उस पर नज़र पड़ी तब सभी सिक्योरिटी गार्ड उसे समझाने के लिए दौड़े और काफ़ी समझाने के बाद इस युवा को छत पर से उतार लिया गया। ऐसे में इस वक्त मानसिक तौर पर अस्वस्थ इस युवा को सिक्योरिटी गार्ड ने छत पर से उतार लिया है, लेकिन आखिरकार वो छत पर क्यों चढ़ा था और किस तरह, इस बारे में तहकीकात की जा रही है। कहाँ रहते हो? मैं इतना अंदर तो मेरे को ट्रामा सेंटर भी ले जाएंगे, आमा केरवा भी ले जाएंगे। अब सब जगह कालदी में भी भर्ती हूँ, सब कुछ है। मेरे को न्यूज़ में भी ज्वाइन होना था। एक लड़का था, सब उसको बोला गया था तुमको अंत तक पहुँचाना पड़ेगा, तो हर कुछ था उसमें, क्रिकेट से लेके सब कुछ है, सब कुछ। कितना पढ़े हो? मैं सर, मैं खुद MBBS भी कर चुका हूँ और रियली में मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है बरकत यूनिवर्सिटी से। कहाँ है बरकत यूनिवर्सिटी भोपाल में ही है, हबीबगंज स्टेशन भी है। और मैं रहता था मतलब वहाँ पर, नाम अभी नहीं बोलूँगा, अंदर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जब क्लासरूम में जा सकते हैं कि रैगिंग, नाम सुनेंगे, रैगिंग होती है, रैगिंग भी हुई है मेरी। मेरे पास कुछ गाड़ियाँ भी थी, मेरे पापा ने दी थी गाड़ी, है ना। तो मेरे फिर अमिताभ बच्चन सब कुछ है, सबकी कहानी है। एसएसजी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स बीते कई वक्त से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कोरोना काल से ही ये सभी डॉक्टर्स लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और नीट पीजी काउंसलिंग और भर्ती प्रक्रिया बंद होने के चलते इन सभी डॉक्टर्स पर काम का बोझ बढ़ गया है। ऐसे में इन सभी जूनियर डॉक्टर्स की ओर से पैन इंडिया की हड़ताल को समर्थन देते हुए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कल से इन जूनियर डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत करते हुए ओपीडी की सेवाएं बंद कर दी थी और आज सभी डॉक्टर्स पोस्टर बैनर लेकर एसएसजी अस्पताल में सुपरिटेंडेंट की ऑफिस के बाहर बैठे हैं और विरोध जताते हुए इन सभी ने आज इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर दिया है।
ऐसे में इन डॉक्टर्स की सिर्फ यही मांग है कि जल्द से जल्द नीट पीजी काउंसलिंग और भर्ती प्रक्रिया को तेज़ कर दिया जाए और इस मामले में सरकार की ओर से उन्हें किसी बात का आश्वासन भी मुहैया करवाया जाए। અમે 2020ના રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર્સ છે। દર વર્ષે નવી નીટ થાય એક્ઝામ, પછી નવા જુનિયર્સ આવે છે। પહેલાં કોવિડના કારણે અને અત્યારે પછી આ જે રિઝર્વેશનનો જે કેસ ચાલે છે એના કારણે કાઉન્સેલિંગ સતત ડિલે થાય છે। અમારું જે હોસ્પિટલનું અહીંયા વર્કલોડ હોય, ઓલરેડી ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ પેશન્ટ્સથી ઓવરલોડેડ હોય છે, એમાં એક આખી બેચ જે છે રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર્સની, એ આખી એક બેચની જે વેકેન્સી છે ડેફિસિટના કારણે અમે લોકો બહુ જ વર્કલોડ, ફિઝિકલ તથા મેન્ટલ વર્કલોડનો અનુભવ કરીએ છીએ બરાબર। અને એના કારણે અમે લોકો જે અમારી વર્ક એફિશિયન્સી છે એ પ્રમાણે કામ નથી કરી શકતા। જે પેશન્ટને સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરી મેક્સિમમ અમે પ્રોવાઈડ કરવા ઈચ્છતા હોઈએ છીએ, છતાં પણ એ અમારું મેક્સિમમ ડિલિવર નથી કરી શકતા અને આ વસ્તુ સતત ડિલે થતી જાય છે અને એના માટે એક્સપીડિટ થાય પ્રોસેસ, એના માટે અત્યારે અમે સ્ટ્રાઇક કરીએ છીએ। हमारी बस एक ही डिमांड है, रिक्वेस्ट है कि जो भी नीट पीजी की काउंसलिंग चालू है वो बस एक्सपीडिएट करनी है। हम लोग पैन इंडिया जो स्ट्राइक चल रही है उसके सपोर्ट में आज स्ट्राइक में आए हैं। बस क्योंकि हमारी जो भी बैच है वो लास्ट 1.5 ईयर से बस आर्वनशिप कर रही है। कोविड के फर्स्ट वेव, सेकंड वेव में भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। काम करने से प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ओवरबर्डनिंग हो रही है अभी एक बैच के डेफिशिएंसी से, बस वो भरने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक्सपीडिएट हो काउंसलिंग की प्रोसेस, तो जल्दी बाकी लोग भी आए। और जैसे रूटीन में इससे पहले काम चलता था फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर रेसिडेंसी के, वैसे बैचेस में काम चालू हो जाए तो हमारे एकेडमिक्स भी ना सफ़र हो। बिकॉज हम लोग लास्ट ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ से हमारा एकेडमिक्स बहुत सफ़र हुआ है कोविड फर्स्ट सेकंड वेव में भी, और अभी जूनियर्स नहीं आ रहे तो इसमें भी हमारा एकेडमिक्स बहुत सफ़र हो रहा है। नर्मदा में सखी वन स्टॉप सेंटर के जरिए छात्राओं को हो रही दिक्कतों के बारे में उन्हें मार्गदर्शन देने का आयोजन किया गया। नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा पर इनरेका संस्थान संचालित सनातन धर्म सीनियर सेकेंडरी स्कूल मौजूद है, जहां पर आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के भाग स्वरूप भारत सरकार पुरस्कृत महिला और बाल विकास विभाग की ओर से सखी वन स्टॉप सेंटर का आयोजन किया गया था। और सखी वन स्टॉप सेंटर के ज़रिए नर्मदा की छात्राओं को कई विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया। दरअसल छात्राओं को होने वाली दिक्कतों के चलते उन्हें साझा किया गया और साथ ही अगर कोई भी छात्राओं को परेशान करे तो उन्हें किस तरीके से सखी वन स्टॉप सेंटर से उनकी मदद प्राप्त करनी है, इस बारे में भी मार्गदर्शन मुहैया करवाया गया। जूनागढ़ में समस्त ब्रह्म समाज की ओर से नए होद्देदारों की नियुक्ति के कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें समस्त ब्रह्म समाज के सभी सदस्य बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। जूनागढ़ के भैंसाण पर समस्त ब्रह्म समाज के जूनागढ़ के प्रमुख केडी पंड्या की उपस्थिति में सभी होद्देदारों की नियुक्ति के कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें भैंसाण तालुका के समस्त ब्रह्म समाज के प्रमुख के तौर पर रैनिश मेहता की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही कई अन्य होद्देदारों की नियुक्ति भी इस मौके पर की गई और बड़ी तादाद में ब्रह्म समाज के लोग इस दौरान उपस्थित रहे। समस्त ब्रह्म समाज द्वारा कारोबारीમાં જુદી જુદી વરણીઓ કરવામાં આવી, જેમાં ભેંસાણ તાલુકા સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજના પ્રમુખ તરીકે રેનિશભાઈ મહેતાની વરણી કરવામાં આવેલી છે। जाफराबाद में वाघेला परिवार की ओर से स्वर्गीय छनाभाई वाघेला की श्रद्धांजलि अर्पित करने के चलते समूह लग्न का आयोजन किया गया था, जिसके तहत जाफराबाद में हनुमान जी मंदिर पर प्रजापति समाज के समूह लग्न आयोजित हुए थे, जिसमें पूर्व संसदीय सचिव हीराभाई सोलंकी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। स्वर्गीय छनाभाई वाघेला को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रजापति समाज के समूह लग्न आयोजित किए गए थे, जिसके तहत 23 वर वधू ने शादी की। वैसे इस प्रजापति समाज के समूह लग्न में पूर्व संसदीय सचिव हीराभाई सोलंकी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। हालांकि सरकार की गाइडलाइंस के तहत ही समूह लग्न का ये आयोजन किया गया था और इस समूह लग्न के तहत शादी करने वाले सभी दंपत्ति को हीराभाई सोलंकी की ओर से शुभकामनाएं दी गई। आज रोज
તારીખ 7/12/2021 જાફરાબાદ મુકામે 23 દીકરીઓના સમૂહ લગ્ન થયા અને એના પ્રણેતા એટલે કે આયોજક સ્વર્ગસ્થ છન્નાભાઈ ભીખાભાઈ વાઘેલા અને તેમનો પરિવાર એટલે કે ગંગા સ્વરૂપ ગૌરીબેન છન્નાભાઈ વાઘેલા અને એમના દીકરા રામજીભાઈ, કાનજીભાઈ અને વિજીભાઈ, આ ત્રણેય ભાઈઓનો એવો સંકલ્પ હતો કે અમારે 23 દીકરીઓને કન્યાદાન કરવું છે. આ વિચાર મિત્રો એક છનાતા જ્યારે જીવિત હતા ત્યારે એમનો સંકલ્પ હતો કે મારે કંઈક સારું કાર્ય કરવું છે. તો એમના ધર્મપત્ની અને એમના દીકરાઓને એવો વિચાર આવ્યો કે આપણે સમાજની દીકરીઓને કન્યાદાન આપીએ તો. એટલે સામાન્ય વાત નથી, પણ આજે 23 દીકરીઓને વિદાય આપી ત્યારે ખરેખર એના આંખમાં પણ આંસુ હતા કે જાણે મારી પોતાની દીકરીને મેં વિદાય આપી. ત્યારે સમાજમાં એક પ્રેરણા રૂપ એક કિસ્સો, એક અમારા સમાજમાં, એક પ્રજાપતિ સમાજમાં એક ઇતિહાસ બન્યો છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કંઈ પણ કામ કરી શકે ખરો. એટલે એના માટે એક પ્રેરણા સ્ત્રોત ખાસ કરીને ગંગા સ્વરૂપ જે ગૌરીબેન છે એમનો હૃદયથી એવો આશય હતો કે આ પ્રેરણા મળે એટલા માટે અમે આ કામ કરીએ છીએ કે સમાજમાં અઢળક સંપત્તિવાન લોકો છે પણ એને પણ આ પ્રેરણા મળે અને આવા સારા સારા કાર્યો સમાજમાં થાય. તો વાત કરું આ કાર્ય સફળ બનાવવા માટે મિત્રો કે અમારે વેરાવળ સમાજ, પાટણ સમાજ, કોડીનાર સમાજ, ઉના સમાજ ઉપરાંત ગરાળ સમાજ, બાબરિયાવાડ, રાજુલા પ્રજાપતિ સમાજ અને અમરેલી પ્રજાપતિ સમાજના તમામ અગ્રણીઓ હાજર રહી અને આ કાર્યક્રમને એક સારો એવો ઉજળો કરી બતાવ્યો અને વાઘેલા પરિવારનું નામ ઉજળું કરી બતાવ્યું છે. તો આ પ્રમાણે આ કાર્ય સંપન્ન થયો છે. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त गरुड़ेश्वर से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक गरुड़ेश्वर तहसील के तिरखिड़ी गांव में ग्राम पंचायत समरस बनी है. दरअसल चुनाव को लेकर उम्मीदवारी फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जिसके बाद गांव के निवासियों ने मिलकर अपने लिए एक ही उम्मीदवार को चुनकर ग्राम पंचायत के चुनाव को समरस कर दिया, जिसके चलते आज विजय सरघस का आयोजन भी किया गया और चुने हुए उम्मीदवार समेत वहां के अग्रणियों की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस विजय सरघस को निकाला गया. ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा होने के बाद से ही चुनाव से जुड़ी हर प्रक्रिया को शुरू करवा दिया गया है. ऐसे में गरुड़ेश्वर तहसील से इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक वहां पर ग्राम पंचायत के चुनाव समरस बने हैं, यानी कि वहां पर सरपंच पद पर संजुता बहन और उप सरपंच के पद पर शैलेश भाई की नियुक्ति कर दी गई है. ऐसे में आज विजय सरघस का भी आयोजन किया गया था, जिसमें गाँव के लोग और सरपंच और उप सरपंच के समर्थक बड़ी तादाद में जुड़े. सभी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई. इस मौके पर क्या कहा गांव के नए सरपंच और उप सरपंच ने, आइए सुनते हैं. गामना वडीलो અને ગામજનોના સાથ સહકારથી વાઘડિયા ગામ પંચાયત સમરસ થઈ છે, તેમનો ખૂબ આનંદ અનુભવું છું. ગામને લગતા જે પણ કંઈ કાર્ય હશે તેમને હું નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવીશું. ગામજનોએ મને સરપંચ તરીકે ઊભી રાખી છે, તેમને જાહેરાત કરી છે, તેનો હું આભાર માનું છું. આજ રોજ ગામ વાગડિયા, તાલુકો ગરુડેશ્વર, જિલ્લો નર્મદા, જે હાલની સરપંચની ચૂંટણીમાં જે વાગડિયા ગામ બિનહરીફ પંચાયત જાહેર થઈ છે એના અનુસંધાને આજે અમે સૌ એક ખુશીનો માહોલ, અમારા સર્વ વડીલોનું સન્માન અને અમારી ચૂંટાયેલી નવી બોડીનું સન્માન કરવા માટે આજે અમે એકત્રિત થયા છીએ અને અમારા ગામની અંદર આજે એક ઉત્સાહ અને એક પૂર્વનો તહેવાર હોય એવી અનુભૂતિ અમે અનુભવીએ છીએ અને આવનારા સમયની અંદર અમારા ગામની એકતા
અમારા ગામમાં આવનારા પ્રશ્નોનું અમે નિરાકરણ કરવા માટે સર્વ ગામ સહમતિથી કરીશું। खबरों के बीच वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटी से सज्ज 150 रूम्स। कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। कॉन्टैक्ट नंबर 9586647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। वडोदरा जिला निवृत्त कर्मचारी मंडल के तहत कई पेंशनर्स मौजूद है जो बीते कई वक्त से सरकार के सामने विभिन्न मांगों को रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इन सभी पेंशनर्स का ये कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ उनकी बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है और इसीलिए खर्च भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें पेंशन में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, जिसके चलते आज ये सभी पेंशनर्स इकट्ठा हुए और उनकी ओर से 3 घंटों के मौन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत सभी पेंशनर्स पोस्टर लेकर हड़ताल पर बैठे और फिर मौन कार्यक्रम के अंत में ये सभी जिला कलेक्टर RP पारड के पास पहुंचे और उन्हें उनकी ओर से आवेदन पत्र देकर 12 मांगों को साझा किया गया। दरअसल वडोदरा शहर जिला में 30 से 40 हज़ार जितने ऐसे पेंशनर्स हैं और ये सभी काफ़ी वक्त से सरकार के सामने अपनी मांगें रख रहे हैं। અમારી માંગણીઓ કુલ 12 માંગણીઓ છે। 12 માંગણી પૈકી પહેલી માંગણી એ છે કે 18 માસનું જે પેન્શન અમારું ડીએનો ડિફરન્સ છે બાકી એ ડિફરન્સ અમને ચૂકવવો જોઈએ। સાથે સાથે ગુજરાત સરકારમાં ગુજરાત સરકાર વિધવા, ત્યક્તા અને અપરિણીત પુત્રીઓને આજીવન કુટુંબ પેન્શન જેમ સેન્ટ્રલ આપે છે એ જ ધોરણે ગુજરાત સરકારે પણ આપવાની જરૂર છે, તે નથી આપતું। સાથે સાથે પેન્શનરોને ઇન્કમ ટેક્સમાંથી મુક્તિ આપવી, કારણ કે મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ છે, ધારાસભ્યો છે અને એ લોકો 5 વર્ષની નોકરી કરે અને એમને પેન્શન આપવામાં આવે છે અને એમાં ઇન્કમ ટેક્સમાંથી મુક્તિ પણ આપવામાં આવે છે। આવી મુક્તિ પેન્શનરો તો લાંબી સર્વિસ કરેલી હોય છે તો એમને પણ આ ઇન્કમ ટેક્સમાંથી મુક્તિ આપવાની જરૂર છે। સાથે સાથે ગુજરાત સરકારે 300 રૂપિયા અમને મેડિકલ એલાઉન્સ આપે છે, કેન્દ્ર સરકારે 1000 રૂપિયા મેડિકલ એલાઉન્સ આપે છે એના કર્મચારીઓ, તો અમને પણ 1000 રૂપિયા જેવું મેડિકલ એલાઉન્સ અમને મળવું જોઈએ। સાથે સાથે 1 રેન્ક 1 પેન્શન યોજના કેન્દ્ર સરકારે દાખલ કરી છે, એ દાખલ કરેલી યોજનાનો લાભ પણ અમને મળવો જોઈએ। અત્યારે અમે કલેક્ટરશ્રીને 3 કલાકનો જે પ્રોગ્રામ મૌન ધારણ પ્રોગ્રામ છે એ પ્રોગ્રામ પૂરો કરી અને કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવાના છે। એમાં 12 મુદ્દાઓ અમે સૂચિત કરેલા છે, એ મુદ્દાઓ અમને કહેવાના છે। વડોદરા શહેરના લગભગ 35 થી 40 હજાર કર્મચારી નહીં, પેન્શનરો 35 થી 40 હજારની સંખ્યામાં છે વડોદરા શહેરના। जूनागढ़ के नेचर फर्स्ट के युवा गिरनार के आसपास सफाई मुहिम को कई बार आयोजित करते हैं। उनकी ओर से अब तक सफाई मुहिम का आयोजन कर काफ़ी प्लास्टिक और कचरा इकट्ठा किया जा चुका है। ऐसे में नेचर फर्स्ट के युवाओं की ओर से पोरदेवी जंगल के इलाके में भी सफाई मुहिम आयोजित की गई थी और इस सफाई मुहिम के तहत उन्होंने 700 किलो प्लास्टिक इकट्ठा कर उसका नाश किया। इसके अलावा वहां पर घूमने के लिए आए लोगों को भी साफ सफाई रखने की अपील करते हुए नेचर फर्स्ट के युवाओं की ओर से सभी को साफ सफाई के बारे में मार्गदर्शन भी दिया गया।
देश का युवा धन लगातार नशे के दलदल में धंसता जा रहा है। आजकल कई ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिसमें युवा नशे के दलदल में फंसे होने की जानकारी मिल रही है। ऐसे में गुजरात राज्य और वडोदरा शहर में भी ऐसे कई किस्से पुलिस को मिले हैं, जिसके चलते इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से इन युवाओं को बचाने के लिए आज पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह को आवेदन दिया गया है। दरअसल इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से ये आवेदन देते हुए अपील की गई है कि जल्द से जल्द ऐसे असामाजिक तत्वों पर कदम उठाए जाए जो इन युवाओं को नशे के दलदल में घसीट रहे हैं। इसके साथ ही उनकी ओर से ये भी बताया गया है कि अगर उन्हें कहीं पर भी इस तरीके के असामाजिक तत्वों का अड्डा होने की जानकारी मिली तो फिर उनकी ओर से वहां पर जनता रेड की जाएगी और युवाओं को नशे के दलदल में घुसते हुए रोकने की पूरी कोशिश इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से की जाएगी। आज रोज वडोदरा शहर पोलीस कमिश्नर श्रीने अमे रजूआत करवा आवी रह्या छे के वडोदरा शहर संस्कारी नगरी विद्यानगरी જ્યારે સયાજીરાવ ગાયકવાડે આ વડોદરા શહેરને સમૃદ્ધ બનાવ્યું ત્યારે આ વડોદરા શહેરમાં યુવાધન નશાના રવાડે ચડી રહ્યું છે। યુવાધનમાં તમે આજે સ્કૂલોમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ હોય, કોલેજમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ હોય, નાની ઉંમરે ડ્રગ્સ, ચરસ અને દારૂના રવાડે ચડી પોતાનું યુવાધન બરબાદ કરી રહ્યા છે। તો તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક પોલીસ તંત્રની પણ ભૂલ છે કે આવા અસામાજિક તત્વોને સાવરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। આજે મીડિયાના માધ્યમ દ્વારા હું વડોદરા શહેરના દરેક આવા વાલીઓ, વડીલો તેમજ યુવાનોને હું માહિતગાર કરવા માગું છું કે તમારા વિસ્તારમાં આજુબાજુ ક્યાંય પણ આવા દારૂની હાટડીઓ ચાલતી હોય, અસામાજિક કૃત્ય થતું હોય તો યુથ કોંગ્રેસના દરેક સભ્યનો, દરેક યુવાનનો સંપર્ક કરે અને અમને જાણકારી મોકલાવશે તો અમે ત્યાં જનતા રેડ કરીશું અને મીડિયાના માધ્યમને પણ સાથે રાખી વડોદરા શહેરમાં નશા મુક્તિ કરીશું। गरुड़ेश्वर तालुका के भुटियादरा गांव से बीते 33 साल से यात्रालुओं का संघ पावागढ़ जाने के लिए पैदल रवाना होता है। ऐसे में इस साल भी इस संघ से जुड़े कई श्रद्धालु पावागढ़ जाने के लिए पैदल रवाना हुए हैं। वैसे इस संघ से जुड़े सभी श्रद्धालुओं का घर गांव में स्वागत किया जाता है और उनके चाय नाश्ते का प्रबंध भी करवाया जाता है। ऐसे में इस साल जब ये संघ रवाना हुआ है तब रास्ते में महाकाली एनक्लेव के संचालक रंजीत भाई दिनेश भाई तड़वी की ओर से इन सभी श्रद्धालुओं का स्वागत कर उनके नाश्ते का प्रबंध करवाया गया और उसके बाद ये संघ फिर से पावागढ़ के लिए पैदल रवाना हुआ। दिवालीपुरा कोर्ट पर बार एसोसिएशन वकील मंडल के चुनाव प्रस्तावित है, जिसे लेकर उम्मीदवारी फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू करवा दिया गया है। ऐसे में कई वकीलों की ओर से अपना नामांकन दर्ज करवाया जा रहा है, जिसके चलते आज वकील निमिषा धोत्रे की ओर से लाइब्रेरी सेक्रेटरी के पद के लिए अपना नामांकन दर्ज करवाया गया है। आज रोज तारीख 7/12/2021 रोज मैं उम्मीदवारीનું ફોર્મ ભર્યું છે જે લાઇબ્રેરી સેક્રેટરીના પદ માટે છે અને મને વકીલો પર ભરપૂર વિશ્વાસ છે કે તેઓ મને બહુમતીથી જીતાડશે, વોટ આપશે અને અપાવશે, કારણ કે હું હર હંમેશ તેમના માટે ખડે પગે ઊભી રહી છું। તેમના પ્રશ્નોનો નિરાકરણ માટે પણ હું હર હંમેશ દોડતી રહી છું। તો મને વિશ્વાસ છે કે તેઓ મને ખૂબ જ ભારી વોટોથી જીતાડશે। ग्राम पंचायत के चुनाव 19 दिसंबर को प्रस्तावित है, जिसे लेकर चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करवा दिया गया है। हालांकि जब से ग्राम पंचायत के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है तभी से लेकर इसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई विवाद सामने आ रहा है। ऐसे में वर्णामा में 2 प्रतिस्पर्धी दीपा अमीन और साथ ही नीरज कुमार पटेल, इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं
कि इन दोनों के पास 2 जगहों के इलेक्शन कार्ड है और इसीलिए उनका उम्मीदवारी फॉर्म रद्द कर दिया जाए। वैसे ये आरोप लगा रहे हैं उम्मीदवार जितेंद्र पटेल और उनके समर्थक, और यही आरोप लगाते हुए आज उम्मीदवार जितेंद्र पटेल और उनके समर्थक वडोदरा में जिला कलेक्टर की कचहरी पहुंचे और उनकी ओर से जिला कलेक्टर आरपी बारड़ को आवेदन पत्र देते हुए इन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द करवाने की मांग कर कड़े कदम उठाने की मांग की गई। પરનામા જૂથ ગ્રામ પંચાયત વોર્ડ નંબર 3નો ઉમેદવાર છું। મારી સામે જે 2 માણસોએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે એમાં શ્રીમતી દીપાબેન સંદીપભાઈ અમીન અને નિકુંજ નીરજ શૈલેષભાઈ પટેલ। આ બંને વ્યક્તિ 2 જગ્યાએ વોટ આપી રહ્યા છે, એક સયાજીગંજ અને એક સુરેશ પાર્ક, એવી જ રીતે મકરપુરા, એવી જ રીતે વરનામામાં પણ એમનું વોટ છે એમનો। તો એક વ્યક્તિ 2 જગ્યાએ વોટ આપી રહ્યા છે અને મારી સામે ઉમેદવારી નોંધાવી છે એનો મને વિરોધ છે। सरकारी बैंकों के निजीकरण के सामने आज राजकोट में बैंक के कर्मचारियों की ओर से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शित किया जा रहा था। हालांकि बैंक के कर्मचारियों ने इसके लिए पुलिस से मंजूरी ली थी, ऐसा उनकी ओर से कहा जा रहा है। लेकिन जब ये प्रदर्शन चल रहा था उसी दौरान वहां पर पुलिस के अधिकारी आ पहुंचे और उनकी ओर से इस प्रदर्शन के लिए मंजूरी ना ली गई होने की बात को बताते हुए सभी बैंक के कर्मचारियों की गिरफ्तारी कर ली गई। हालांकि एक और बैंक के कर्मचारियों का ये कहना है कि उनकी ओर से मंजूरी ली गई थी और दूसरी ओर पुलिस के कर्मचारी ये कह रहे हैं कि इस धरना प्रदर्शन के लिए उनकी ओर से कोई भी मंजूरी नहीं दी गई है। ऐसे में फिलहाल पुलिस ने इन सभी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। खंडोबा भगवान के मंदिर पर महाराष्ट्रियन समाज की ओर से सालों से मल्हारी महल साकांत का पर्व मनाया जाता है। ऐसे में पिछले साल तो कोरोना के चलते इस पर्व को मनाने की इजाज़त नहीं मिली थी, लेकिन इस साल इजाज़त मिलने के बाद महाराष्ट्रियन समाज के लोग काफ़ी खुश हैं और इस पर्व को मनाने को लेकर काफ़ी उत्सुक भी है। वैसे आपको बता दें कि इस पर्व के अगले 5 दिनों तक लघु रुद्र और अभिषेक का आयोजन भी मंदिर में होता है और उसी के तहत इस साल भी सारा आयोजन किया गया है। वैसे आज महाराष्ट्रियन समाज के लोगों की ओर से इकट्ठा होकर धामधूम से इस पर्व को मनाया जाएगा। महाराज પહેલાથી પણ છે એ જ્યારે ગુજરાતમાં આવ્યા રાજ્ય કરવા અને એમનું કુળદેવત આ માલસાકાંત છે અને માલસાકાંતનો પ્રાદુર્ભાવ એવો થયો, મણિ અને મલ્લ નામના રાક્ષસોએ બહુ ત્રાસ થયો અને એમની જોડે યુદ્ધ થયું। યેળકોટ એટલે યેળ એટલે 5, કોટ એટલે કોટી, 5 કરોડ દેવ સૈન્ય સાથે આ મલ્લ અને મણિ અસુર એમનું યુદ્ધ થયું। યુદ્ધમાં જય થઈ ગયો અને પછી આ ઋષિમુનિઓએ વિનંતી કરી કે હવે તમે પાછા કૈલાસે જશો, અમારું શું? એટલે ચંપા ષષ્ઠીના દિવસે એમને 2 શિવલિંગ તરીકે આ પૃથ્વી ઉપર રહ્યા, તે એ માલસાકાંત અને એમનો આ ઉત્સવ એટલા માટે પડવાથી તે ચંપા ષષ્ઠી છઠ સુધી 6 રાત્રિનો ઉત્સવ, જેવું માતાજીનું નવરાત્રિ થાય છે એવી આ ષડરાત્ર ઉત્સવ માલસાકાંતનો છે અને ચંપા ષષ્ઠીના દિવસે એ પ્રાદુર્ભાવ થયો એટલે ત્યાં વિવાહોત્સવ અહીંયા દર વર્ષે કરવામાં આવે છે। પ્રતિપદાથી માંડીને ઘટસ્થાપના પણ થાય છે અને રોજે અહીંયા અભિષેક થાય છે અને ષષ્ઠીના દિવસે તમારે લઘુરુદ્ર મહાઅભિષેક થાય છે। પાંચમના દિવસે હળદરનો પ્રોગ્રામ થાય છે વિવાહોત્સવમાં અને સાંજે ચંપાષઠી દિવસે આ પ્રમાણે અહીંયા વિવાહોત્સવ થાય છે। તે જ પ્રમાણે મહારાજાની વિનંતીથી આ પોથી જે છે તે બ્રહ્માંડ પુરાણમાં આ વાત આવી છે। જેવી આપણે માતાજીની સપ્તશતી છે એમાં માતાજીનું મહાત્મ્ય તેવું આ અહીંયા માલસાકાંતનું મહાત્મ્ય આમાં આપેલું છે બ્રહ્માંડ પુરાણમાં અને મહારાજાના કહેવાથી હું રોજે આ અહીંયા પાઠ કરું છું। એના 22 અધ્યાય છે, પહેલાંમાં 13 અધ્યાયમાં છે। આ 22 અધ્યાય માલસાકાંતનું મહાત્મ્ય એ મહારાજા તરફથી કાયમ હું અહીંયા પાઠ કરું છું અને આ પ્રમાણે આ ઉત્સવ દર વર્ષે ચાલે છે। પ્રાચીન ઉત્સવ છે। મહારાષ્ટ્રમાં જ્યારે આવ્યા ત્યાં પણ પોતાની સાથે કુલદેવ લઈ આવ્યા,
એ માલસાકાંત અને અહીંયા સ્થાપન કર્યું છે, એટલે વર્ષોથી અહીંયા છે. ખંડોબા ભગવાનનું આ મંદિર છે. વર્ષોથી અહીંયા મલ્હારી મહાસાકાંતનો ઉત્સવ થાય છે. એમાં આગલા 5 દિવસથી મલ્હાર મહાસાકાંતના ઉત્સવમાં લઘુરુદ્ર અને રોજના અભિષેક થાય છે. અને આગલા દિવસે એટલે હળદીના ટાઈમે હળદી પ્રોગ્રામ થાય છે. તે બોલાઈ માતામાંથી લાવીને અહીંયા મંદિરમાં ઉત્સવ સાજરો થાય છે. બીજા દિવસે ચંપાષષ્ઠીનો મહા ઉત્સવ થાય છે. એમાં લઘુરુદ્ર અને બધા રાજ પરિવારના અને આખા મરાઠા સમાજના બધી જ્ઞાતિના લોકોના કુલદૈવત છે. એટલે એમાં બધા જ જાતના લોકોના આ વરદ પ્રસાદ મળે છે ભગવાનનો, खंडोबा मल्हार महासाकांतनो। राजकोट के केटी चिल्ड्रन अस्पताल में अनामी पारणों की शुरुआत जिला कलेक्टर अरुण महेश बाबू के हाथों करवाई गई। कई बच्चों को उनके मां बाप की ओर से छोड़ दिया जाता है। ऐसे बच्चों को सुरक्षा और सलामती मिले, इसी आशय से राजकोट के केटी चिल्ड्रन अस्पताल पर समाज सुरक्षा विभाग, गुजरात स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी और जिला बाल सुरक्षा एकम की ओर से अनामी पारणों की शुरुआत करवाई गई है। जिला कलेक्टर अरुण महेश बाबू के हाथों अनामी पारणों की शुरुआत करवाई गई, जिसके तहत अब ऐसे बच्चे जिन्हें उनके माँ बाप की ओर से छोड़ दिया जाता है उनका ध्यान रखा जाएगा। 2 દિવસ પહેલાં માનનીય કલેક્ટર સાહેબે આપણા કેટી ચિલ્ડ્રન વોર્ડની બહાર એક અનામી પારણાનું લોકાર્પણ કર્યું છે। આ પારણાનો હેતુ એવો છે કે સમાજ સુરક્ષા ખાતામાં જ્યાં કાઠિયાવાડ નિરાશ્રિત બાલાશ્રમ છે ત્યાં આવા બાળકોને પારણામાં જે આવેલા બાળકો છે એમને આશ્રિત કરવામાં આવશે અને દંપતી જેમને સંતાનો થતા નથી એને ભવિષ્યમાં આ દત્તકમાં દેવામાં આવશે। મુખ્ય હેતુ એવો છે કે ક્યારેય કોઈ બાળકને જોતું ન હોય તો પરાણે લાઈક મારી નાખે, વાડ કાટાડી વાડમાં ફેંકી દે, ગમે ત્યાં જે તે જગ્યાએ બાળકોને ના ફેંકી દેતા આ બાળકો માટે સરકારશ્રી છે। તમે આ બાળકોને ગમે ત્યાં ન ફેંકતા આ પારણામાં મૂકો, જેથી કરીને આ બાળકોને સારું જીવન ધોરણ અને પરિવાર મળી શકે। ग्राम पंचायत के चुनाव 19 दिसंबर को प्रस्तावित है, जिसे लेकर चुनाव की हर प्रक्रिया को शुरू करवा दिया गया है। उम्मीदवारों की ओर से उम्मीदवारी फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत विभिन्न उम्मीदवार अपना नामांकन दर्ज करवा रहे हैं। ऐसे में शिनोर के मांजरोल गांव में 3 उम्मीदवारों की ओर से अपना नामांकन दर्ज करवाया गया था, लेकिन मांजरोल गांव के एक और उम्मीदवार मनहर भाई वसावा की ओर से इन तीनों उम्मीदवारों पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने गैर नीति करते हुए गलत सबूत दिखाते हुए अपना नामांकन दर्ज करवाया है। ऐसे में आज मनहर भाई वसावा जिला कलेक्टर कचहरी पर पहुंचे और उनकी ओर से आवेदन पत्र देकर ये मांग की गई कि इन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाए। तालुकाना मोजोल गामना सरपंचना उम्मीदवार हूँ वसावा मनोहरभाई सोमाभाई। मारी रजूआत एवी है कि मारी सामेना बे उम्मीदवार है, सरपंचना ने एक वार्डनो। ए लोकोए शौचालयना खोटा पुरावा आपी अने एक जे 6 नंबर वॉर्डना है ए लोकोए खोटું સોગંદનામું કરેલું છે પેઢીનામાનું અને દાખલો કરાયેલો છે। એના માટે હું આજે કલેક્ટરશ્રી સાહેબને રજૂઆત કરવા આવ્યો છે અને સાહેબશ્રી મારું સાંભળે એવી મારી વિનંતી છે। મેં મારા ડોક્યુમેન્ટ્સ બી લાવ્યો છે, એ લોકોના ખોટા પુરાવા રજૂ કરેલા છે તે એટલે એ ચૂંટણી અધિકારી સાહેબશ્રીને સિનોરના અમારા ગામના જે લગતા એ છે તેમને ખરેખર અહીં આગળ રજૂ અહીં બોલાવી અને એનો ડોક્યુમેન્ટ્સ જોવે અને મારા હું હમણાં આપીશ તે ડોક્યુમેન્ટ્સ જોવે। ग्राम पंचायत के चुनाव अब प्रस्तावित है और उम्मीदवारी फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी कब से शुरू हो चुकी है, जिसके तहत विभिन्न जगहों पर उम्मीदवार अपना नामांकन दर्ज करवा रहे हैं। ऐसे में शिनोर से इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक शिनोर के चुनाव अधिकारी परवेज भाई खत्री की ओर से वार्ड नंबर 3 के एक उम्मीदवार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसका फॉर्म गलत तरीके से मंजूर किया गया है। दरअसल वार्ड नंबर 3 के इस उम्मीदवार को किसी गुनाह के चलते 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी और इस वक्त वो जामीन पर बाहर है। ऐसे में ये आरोपी
उम्मीदवारी फॉर्म कैसे भर सकता है, इस पर सवाल उठाते हुए परवेज भाई खत्री की ओर से जिला कलेक्टर को आवेदन देते हुए इस उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की गई है। અમે એ વિષયમાં લઈને આવ્યા છે કે સિનોર ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી કાલે ચકાસણી હતી. ચકાસણી અંદર વોર્ડના 3ના અંદર મેં પોતે ઉમેદવારી કામિલ ખો કરેલી છે, સામે અબ્દુલભાઈએ કરેલી છે, એક સૈયદભાઈએ કરેલી છે, એક સદ્દામ હુસેને કરેલી છે. એના અંદર સૈયદભાઈ રાઠોડ ઉમેદવારી કરી, એના અંદર બીજાના દરખાસ્તમાં સહી કરેલી હતી એટલે કેન્સલ થયો. પણ આ અબ્દુલભાઈ રાઠોડના ઉપર 2 વર્ષની ગુનો થયેલો છે, દંડ થયેલો છે. તે છતાં બી આ ચૂંટણી અધિકારીએ મામલતદાર સાહેબના ને રાજકીય નેતાઓના પ્રેશરથી ખરેખર આ નામંજૂર થાય મંજૂર કરેલું છે. એના અંદર અમે હાઈકોર્ટનો જજમેન્ટ આપેલો છે ચૂંટણી અધિકારીને. તે છતાં બી અમે રજૂઆત કરી, ભાઈ આ છે ચૂંટણી અધિકારી માન્ય ના રાખ્યો ને અમે એટલે કલેક્ટર સાહેબમાં આવેલા છે રજૂઆત કરવા કે ખરેખર લોકતંત્ર પ્રત્યે લોકોનો ભરોસો ઉઠી જશે. હું એટલે અમે કલેક્ટર રજૂઆત કરી કે સાહેબ તમે ન્યાયિક તપાસ કરી હું અને જે તો જે જજમેન્ટ અમને આજે ને આજે આપે. देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।